started the topic of evaluation of a triple integral under Cartesian or under polar coordinates. So let us continue with the same and do one more example related to that. This is evaluation of a double or triple integral we were doing. So using the transformation u is equal to x minus y, v is equal to x plus y, evaluate double integral cos of x minus y over x plus y dx dy over the region bounded by the lines x equal to 0, y is equal to 0, and x plus y is equal to 1. You have to use this transformation and you need to evaluate this double integral by using these lines. These are the equations of lines. This is x-axis and this is y-axis in xy plane. X equal to 0 is this line, y is equal to 0 is on x-axis, and x plus y is equal to 1 is this line meeting x-axis and y-axis. And you need to evaluate this. Name it as a capital I. Now, using the transformation u is equal to this, v is equal to this. Now, adding these two, if we add these two, you will get 2x is equal to u plus v, and x come out to be u plus v over 2. And if we subtract these two, you will get if we subtract these two, you will get 2y is equal to u minus v, and it come out to be, I think this will be negative sign, and then y come out to be v minus u over 2. This is the value of x and this will be the value of y by adding and by subtracting. Now we have three lines, x is equal to 0, y is equal to 0, and x plus y is equal to 1. So when x equal to 0, u plus v is equal to 0, and when y is equal to 0, v minus u is equal to 0, and when x plus y equal to 1, then what it will be? X plus y equal to 1 mean adding these two values, adding the value of x and y here, or you can substitute the values here. You will get v is equal to 1. So now you can get the values, and what it be? From this equation, u is equal to minus v, and from this equation, u is equal to v, and this is v is equal to 1. And therefore, the region of integration is named as R dash. New region of integration will be in UV plane. So this will be in UV plane. And now v varies from 0 to 1. It is clear from this limit v equal to 1. And what about u? U varies from minus v to v by using these two equations, minus v to v. Now you know that if we change variables, because हमने वेरिएबल को चेंज करना है और ये हमारे पास न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा r डैश, that will be cause of here you have x, what we need to evaluate x minus y, or x minus y is u, or x plus y is v, and here should be Jacobian modulus du dv. ये हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल का फॉर्मूला, यहाँ एक्स वाई को चेंज कर रहे हैं यूवी में, तो जकोबियन निकालना पड़ेगा, एंड जकोबियन विल बी ऑफ एक्स वाई with respect to uv, and it will be 2 by 2 determinant del x by del u, del x by del v, del y by del u,
and del y by del v. Now you need to evaluate the derivative of x with respect to u will be 1 by 2. Derivative of x with respect to v will also be 1 by 2. Derivative of y with respect to u will be minus 1 by 2, and that will be 1 by 2. Ultimately, expanding the determinant, Jacobian come out to be 1 by 2. Now you need to evaluate this double integral. Jacobian, the value of Jacobian is 1 by 2, and your v varies from 0 to 1, and u varies from minus v to plus v, and that is cos of u over v, and this is du, and this is dv. और क्योंकि u का जो लिमिट है, जस्ट सी, u का जो लिमिट है वो वेरिएबल में है v में, तो हमें u से पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, and its integration with respect to u. The integration of cos is sine, so over 1 over v, you will substitute the limits minus v to v dv. Now substitute the limits, and it will come out to be this is 1 over v, 1 over v will become v here, and for upper limit v, when you put v, u की जगह पर v भरेंगे तो v over v is 1, so sine 1 will be there, and minus, and this is a negative v, sine of minus 1, sine of minus 1 will come here, and यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो उससे आपके पास बन जाएगा 1 by 2 0 to 1 v 2 साइन ऑफ 1 dv, और साइन 1 एक कांस्टेंट का काम करेगा तो वो बाहर आ जाएगा साइन 1, और dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, लिमिट्स आर 0 to 1. So ultimately what we should have, this is the 2 sine 1, 2 will be cancelled also. So sine 1 is the final result. Sine 1 is a constant. Sine at 1 degree, it will give you some value. So this is the desired result of this numerical. So this is also the question of change of variables by changing the Cartesian coordinates x and y into new variables u and v. Now we shall discuss the questions of area by double integral. Now you will evaluate the area by double integration. These are also very important questions for finding out the area. अब यहाँ पर क्वेश्चन दो तरह से आएंगे, एक होंगे कार्टेशियन में और एक होंगे पोलर में. The first example is find out the area by double integration of the ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1. By double integration, we need to evaluate the area. Now plot the ellipse here. This is the ellipse. This is x-axis. This is y-axis, and the area mean and the total area. Total area lies in four quadrants: 1, 2, 3, 4. So, but we shall one more thing. This is the origin, and this is A. This is semi-major axis, and that will be your semi-minor axis. So you need to evaluate this area, and therefore required area. आप क्या करेंगे? आप सारे एरिया को 4 टाइम कर देंगे, क्योंकि एरिया जो है एलिप्स जो है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन. जितना ये एरिया उतना ही ये होएगा, उतना ही ये होएगा और उतना ही ये होएगा, इसलिए 4 टाइम कर देंगे. और एरिया का फॉर्मूला dy dx होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल लेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोअर लिमिट विल बी 0, तो यहाँ पर एक को वेरिएबल में कर दीजिए, y को वेरिएबल में किया तो ये बन जाएगा b over a अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. y का लिमिट x में
और x का लिमिट कांस्टेंट में, सीधी सी बात है। और इसको आप अब इवेल्युएट कर देंगे डबल इंटीग्रेशन से 1/1। दिस इज y, पुट द लिमिट्स 0 to b over a square minus x square dx, what it be, and that will be 4b over a, अपर लिमिट भरेंगे तो 0 to a अंडर रूट a square minus x square dx। इसका फार्मूला है, ये हमने +2 में करा था, अंडर रूट a square minus x square का, and that will be x under root a square minus x square over 2 plus a square over 2 sin inverse x over a। ये फॉर्मूला है इसके इंटीग्रल का, and limits are 0 to a। Now you can substitute the limits, and for upper limit a, when you substitute a here, a square minus a square will give you 0, and sine square a over a is 1, and sine square sine inverse 1 is pi by 2, so a square over 2 into pi by 2 will be there, and for lower limit 0, this will be 0 because x, जब x की जगह 0 भरेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये बन जाएगा, एक ए कट जाएगा, पाई ए बी। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द एलिप्स। एरिया निकालने का सीधा फॉर्मूला dx dy, ये एरिया होता है, बस इसमें हमने लिमिट लगा देनी। और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया था, अगर यहीं पर इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया होता, सपोज वी हैव अ सर्कल लाइक दिस, and obviously it should have some radius, suppose x square plus y square, x square plus y square is equal to a square, a ही रेडियस मान लेते हैं, तो इस केस में आपके पास जो एरिया आएगा वो भी dx dy आएगा, और वहां एक वेरिएबल में लिमिट ले लेंगे, दूसरा हम लोग कांस्टेंट में ले लेंगे। सो सपोज हम y का जो x का लिमिट है वो ऐसे कर लेते हैं, x कम आउट टू बी प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सिमेट्रिकल ना, दिस इज द सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, मतलब जितना ये एरिया होएगा नंबर 1 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना होएगा उतना ही सेकंड में होएगा, उतना ही थर्ड क्वाड्रेंट में होएगा, और उतना ही फोर्थ में होएगा। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड कर लेंगे, बस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 4 टाइम कर देंगे, तो वो आपके पास बन जाएगा 0 to अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये y में लिमिट है तो x का लिमिट है, और x का लिमिट आ गया, और y का लिमिट क्या आएगा 0 to a। तो पहले हम लोग x से इंटीग्रेट कर देंगे, और जब हम x से इंटीग्रेट करेंगे बनेगा x, लिमिट भरेंगे 0 to अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy, और 4 0 to a under root a square minus y square dy, and you just see this will be 4, formula will be y under root a square minus y square। अभी यूज करा हमने फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, दिस वन, ये जो अभी यूज करा है, ओके, यस that सर, will be over 2, and next will be plus a square over 2 sin inverse y over a। लिमिट्स आप भर देंगे 0 to a। नाउ यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। अच्छा, एक और बात है, एक और बात है, ये सर्कल का इक्वेशन है, दिस इज द सर्कल वे है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब ध्यान से स्मार्ट से देखना यहाँ एरिया कितना आता है, पुट अपर लिमिट, जब आप ए भरेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल गिव यू 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स ए ओवर ए, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, सो ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू पाई बाय 2,
and for lower limit 0, this is 0, sin inverse 0 is also 0, and you just see 4 cancel हो जाएगा, पाई a square. ठीक है एरिया? क्यों जी? एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है जी? एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. याद नहीं फॉर्मूला? याद है ना याद है। फॉर्मूला? यस तो आर, यहाँ रेडियस कितना है बेटे? ए. तो ए ए का स्क्वायर स्क्वायर जी। पाई ए स्क्वायर. तो हमें आंसर पता था ना पहले ही, यस सर। यस सर। तो वही आना चाहिए था ना. ओके, यस सर। यस सर। उतना ही आ गया है हमारे पास, कोई गड़बड़ नहीं आया है. तो एक तरह से हमें आंसर पता है कि जो सर्कल का जो एरिया होता है वो इतना होता है पाई ए स्क्वायर. अच्छा, अगर हमारे पास सर्कल का इक्वेशन बदल जाता, सो दिस इज द 10 स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस? 10, रेडियस इज 10, 100 पाई. 100 पाई आना चाहिए. तो आप जहां जहां ए है वहां वहां 10 लीजिए और देखिए क्या 100 पाई आता है. 100 पाई ही आएगा. क्यों जी? उतना ही आएगा ना, यस सर। यस सर. चेंज नहीं, आपके पास उतना ही आएगा. अच्छा, ये तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास? ओनली साक्षी, मुनीश, हिमांशु इज देयर. हिमांशु, आर यू हियर? हिमांशु, आर यू हियर? हिमांशु इज नॉट हियर. ओके. अच्छा, ये तो बड़े ध्यान से समझिएगा साक्षी एंड मुनीश. मैंने Yes, sir. करा जब इसको 4 टाइम कर देते हैं ना एरिया को, मैंने ऐसे करा ना क्वेश्चन, ये देखिए मैंने 4 टाइम कर दिया क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है तो हम कर सकते हैं. हाँ जी, सिमेट्रिक होता है ना इसलिए कर सकते हैं. अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन विल बी, लिमिट सब निकालेंगे और y का लिमिट आपके पास, जहाँ x का लिमिट आपके पास आएगा माइनस अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर to a square minus y square minus to plus, and what will be the limit of y? That will be minus a to a. जब अकेला y का लिमिट निकालना है तब 0 ले लेना है x को और माइनस a to a आ जाएगा. और ये आप घर पर चेक जरूर करेंगे. देन इन दैट केस योर एरिया, अब मैं 4 टाइम नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट स्टेट. दिस इज द फार्मूला फॉर एरिया. और डेफिनेट इंटीग्रल में you need to use limits. So minus a square minus y square to a square minus y square. और आप देखेंगे आपके पास फिर उतना ही आंसर आएगा. You will see. देखो कैसे, माइनस ए टू ए, जब आपने x का इंटीग्रल करा तो ये बन गया, और आपके पास लोअर में लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है. अब आपने अपर लिमिट बना माइनस माइनस लोअर लिमिट बना तो वो 2 टाइम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. इज इट ओके? वो 2 Yes, टाइम बन sir. एक्सक्यूज जाएगा ना. मी टू सर। कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, माइनस ए टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. तो एक तो यही तरीका है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और फॉर्मूला आपको पता है वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स y ओवर ए. ये आपके पास फॉर्मूला ऑफ दिस इंटीग्रेशन है. अब नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट, यू कैन सब्स्टिट्यूट लोअर लिमिट. फॉर अपर लिमिट a, जब y की जगह a भरेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल गिव यू 0 प्लस, यहाँ पर जब a भरेंगे साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू पाई बाय 2. एंड फॉर लोअर लिमिट माइनस ए, फिर भी वो 0 बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ दैट ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ -1. ये -1 बन जाएगा ना, क्योंकि माइनस ए भरना है. तो व्हाट इट बी, यू टेल. दिस कम आउट टू बी ए स्क्वायर ओवर 4
and what it should be, that will be minus or minus plus बन जाएगा, और is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये आपके पास बन जाएगा Pi by 2. ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर ओवर 4 अगेन, ठीक है जी, ओके। Yes, sir. वो फिर उतना ही बनेगा ना बेटे, तो वो 2 टाइम बन जाएगा, और 2 और 2 4 मिलकर के इसको काट देंगे, आ गया उतना, पाई स्क्वायर आया, Yes, sir. तो तब भी आंसर उतना ही आएगा। एक तो ये तरीका है, एक हम यहां पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद ये क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में हम लोग 2 टाइम कर सकते हैं इसको, +2 का फॉर्मूला याद करिए, इवन फंक्शन होने के कारण हम इसको 2 टाइम कर सकते हैं, और लिमिट से 0 to a कर सकते हैं, करा था Yes, sir. +2 में, याद नहीं ये, -a to a f of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx when function is even, और 0 when function is odd। 0 भी आता है ना, जब ऑड होता है तो फंक्शन वैल्यू 0 आ जाता है, ये बहुत बार यूज करा हमने। So this is a very important part for finding out the area. One more important question, even it is very important for finding out the area by double integration. The question is, find the area enclosed by the parabola y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay. So you have to find out the area by double integration. This is y square is equal to 4ax, and x square equal to 4ay will be your upward parabola. This is x square equal to 4ay. So this is the point of intersection. This is origin point. Name it as a point. तो ये एरिया है एक तरह से, this area we need to evaluate. Area enclosed by these two parabolas. The point of intersection. यहाँ से y का वैल्यू निकाल करके, यहाँ से y का वैल्यू आया है x स्क्वायर ओवर 4a, उसको यहाँ लगा दीजिए, तो बन जाएगा x4 ओवर 16 a square is equal to 4ax. It come out to be x common, x cube minus 64 a cube is equal to 0. So what it be? X come out to be 0 and 4a. Point of intersection आ जाता है, तो x is 0 है, x is 4a है। जब x 0 यहाँ लगाएंगे तो y भी 0 आ जाएगा, जब x 4a यहाँ लगाएंगे तो y भी 4a आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 एंड a के कोऑर्डिनेट 4a 4 ये आ जाते हैं। अब बस हमने वही द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक लिमिट कांस्टेंट में कर देंगे और दूसरा लिमिट वेरिएबल में कर देंगे। तो वेरिएबल में लिमिट हम लोग सपोज y का ले लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप करते थे पहले, तो इस पॉइंट पर y का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y एट दिस पॉइंट इज x स्क्वायर ओवर 4a, एंड इस पॉइंट पर y का वैल्यू यहां से दैट कम आउट टू बी √4ax, एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 0 to 4a। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बस अब हमने यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट एरिया। देयरफॉर द एरिया enclosed by these two parabolas dx dy, ये सिंपल फॉर्मूला, and you just use the limits 0 to 4a, x square over 4a to 2√ax। so यहाँ पर y का लिमिट वेरिएबल में है, तो हम लोग y से इंटीग्रेट पहले करेंगे, एंड इट कम आउट टू बी y x स्क्वायर ओवर 4a 2√a√x dx। now you just use the limits,
it come out to be 2 root a root x minus x square over 4. सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ सर रही सर। आवाज Listening? Are यस you सर। listening? यस सर। यस Yes. सर। यहां तक करा था। यस सर। यहां बस इंटीग्रेशन अब हम करेंगे। 2 स्क्वायर रूट ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स का पावर 1/2 है ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो 1 प्लस हो गया, तो 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2 हो गया, और माइनस 1/4 यहाँ एक्स क्यूब ओवर 3 हो गया। अब यहाँ पर 2/3 बाहर कर लीजिए और 4a रेज टू पावर 3/2 कर लीजिए, माइनस 1/12a एंड देन 4a क्यूब 64a क्यूब। लोअर लिमिट 0 के लिए तो वैल्यू 0 ही आएगा ना। इसको सिंपल हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 रूट a इंटू 2/3 एंड a रेज टू पावर 3/2 तो करना ही पड़ेगा, और 2 की पावर 2 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1/12a 64a क्यूब. So 1a is also cancelled over here and 16 से कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, तो अल्टीमेटली व्हाट इज लेफ्ट विद 16/3 a स्क्वायर, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। a की पावर 3/2 प्लस 1 स्क्वायर बना, ये बन गया 2 इंटू 2/3 इंटू 8 इंटू a स्क्वायर, ये बना दिया आपके पास। तो अल्टीमेटली ये बन गया 16 सॉल्व करके, क्योंकि 32 बना ना, 2 2s are 4, 4 8s are 32, 32 minus 16 16 a square over 3. This is your required area. Okay, यस सर। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास एरिया आ जाता है, एंड दिस इज द एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन, रिमेंबर नाउ। So let us do one more example. This is also very important example we have. Find the area enclosed by, bounded by the parabola y equal to x square and the line y equal to x plus 2. सबसे पहले हमें प्लॉट करना पड़ेगा फिगर को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, ये अपवर्ड पैराबोला होता है, तो अपवर्ड पैराबोला प्लॉट कर दीजिए। तो दिस इज योर अपवर्ड पैराबोला, कॉपी पर जरा ध्यान से बनाइएगा। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू x प्लस 2, इट मीन दैट विल बी x माइनस y इज इक्वल टू -2। तो -2 जा रहा है तो दूसरी तरफ भी जाएगा ये, तो एक तरह से ये ऐसे कट करेगा ऐसे, एंड दिस पॉइंट शुड बी 2, आई थिंक सो। निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट अस फाइंड। For finding out the point of intersection, what you need to do, put the value of y here, y equal to this and y equal to this, और इन दोनों को मिला करके
x square equal to x plus 2 and x minus 2 into x plus 1 is equal to 0. You can check x minus 1 and 2 आ जाता है. minus 1 तो आएगा इस तरफ, this should be minus 1 point. और अगर x minus 1 है यहाँ पर तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट होना चाहिए 1. जब x 2 है तो y का वैल्यू 4, वो ये पॉइंट होएगा 2 and 4. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको P रख लीजिए, दिस इज ओरिजिन, इसको A रख लीजिए and obviously this is the line y equal to x plus 2. So this is the region of integration which we have to find out. So the required area will be double integral dy dx. तो एक लिमिट वेरिएबल में, दूसरा लिमिट कांस्टेंट में. तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन x y and y varies from x square to x plus 2 and x varies from minus 1 to 2. हमने पूरा ले लिया, minus 1 to 2 x ले लिया और y ले लिया x स्क्वायर. डाउन टू अप होता है ना, डाउन टू अप का मतलब वर्टिकल स्ट्राइप. तो वर्टिकल स्ट्राइप मतलब इस पॉइंट पर y का वैल्यू x स्क्वायर और इस पॉइंट पर y का वैल्यू x प्लस 2. तो minus 1 to 2 and x square to x plus 2. So you can integrate it now and get integration of y will dy will be y and x square to x plus 2 dx. Now you can substitute the limit x plus 2 minus x square, upper limit minus lower limit, x cube over 3 minus 1 to 2. Now you can substitute the limit. जब आप अपर लिमिट 2 भरेंगे तो वो बन जाता है 2 plus 4 minus 8 by 3 and जब आप minus 1 भरेंगे तो 1 by 2 minus 2 and plus 1 by 3. तो sort out करके this come out to be 2 plus 4 is 6, 3s are 18 minus 8, 10 by 3 minus this come out to be 6 and this is 2 plus 3, 5 minus 2 plus 2. Okay, 12. That will be plus 7 by 6. यहाँ LCM ले लिया और it come out to be 6, 27 by 6. That will be 9 by 2. ये आ जाता है कैंसिल करके 3 2s are 6, 3 9s are 9 by 2 is the correct value in this question. So by this way you can integrate. So this is the evaluation or the evaluation of area by double integration. इस क्वेश्चन में आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बदल भी सकते हैं. सपोज कर लीजिए हम लोग y का वैल्यू x में लेने की बजाय x का वैल्यूज y में ले लेते हैं. तो x का वैल्यू के लिए लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा. तो लेफ्ट टू राइट मीन हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप बनेगा ये वाला और ये लाइन से बनेगा. x कम आउट टू बी y minus 2 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट विल बी square root of y. That will be your upper limit and the value of y will be 1 to 4. आप इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से भी इवेल्युएट करिए. You will get the same result. You will get the same evaluation or a same result. So thank you very much. I stop my lecture here. You can ask me your problem. If you have any query, ask me your questions.
सर जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना सर, हेलो हाँ जी बेटे बोलिए। सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना